मासूम जो कि एक 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਬੇहद ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈ ਔਰ ਸਵਾਲ ਵਾਕਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੁਝ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਮਨੋਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੇहद ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਰਗਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਬਣੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੀ ਇਕੱਲੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਖਿਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸੀ ਔਰ ਬੱਚੀ ਕਿ ਉਥੋਂ ਕੱਲੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੀਨ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰੇਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਿਨੌਨੀ ਹਰਕਤ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਰਡਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਬੈਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹੈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਭਰੇ ਬੈਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਹੈ ਜੈਂਟਸ ਦੀ ਜੈਕਟ ਹੈ ਜੈਂਟਸ ਦੀ ਜੀਨਸ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਸ਼ਰਟ ਦੋ ਬੈਗ ਪੂਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬੈਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਗਸ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਡਰ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੀ ਦੇ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਸ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਸ਼ੰਕਾ ਜਿਹੜੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦਾ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਮੋਰਚਰੀ 'ਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਘਿਨੌਨੀ ਹਰਕਤ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਆਖਿਰ ਕਿੰਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ पेरेंट्स नाल कोई रंजिश सीगी या किसी भी तरह की कोई दुश्मनी सीगी तो उहदे नाल कर सकदी सी लेकिन 6 साल की मासूम बच्ची का इहदे विच की रोल सीगा ये बहुत बड़ा सवाल इत्थे खड़ा होंदा है कि आखिर समाज च इस तरह के बैड आंसर इन्ने ज़्यादा हो गए कि इस तरह की घिनौनी हरकत करन लगे कि मासूम बच्चों नूं टारगेट करन लगे उन्हां नाल गलत काम करके उन्हां दा मर्डर करके उत्थों सुटिया जांदा है ते आखिर ये जिहड़े बैड आंसर ने है कौन नवजोत ठीक है मनोज तुसी बने रहो इस खबर ते फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी वास्ते तां तुसी सुन रहे सी किस तरह चंडीगढ़ दे विच हैवानियत दियां सारियां हदां पार कर दित्तियां गईयां और एक 6 साल दी मासूम दे नाल जिसदी उम्र महज 6 साल सी और नर्सरी दे विच पढ़दी सी और उस दे नाल हैवानियत दियां सारियां हदां पार कीतियां गईयां उस दे नाल दुष्कर्म वर्गा घिनौना क्राइम कीता गया और उस तो बाद उसनूं मौत दे घाट उतार दित्ता गया फिलहाल बॉडी नूं मॉर्चरी दे विच रखाया गया है और पुलिस पूरी मामले दी तफ्तीश कर रही है कि आखिर की कुछ उस सर्कमस्टांसिस रहे की कुछ घटनाक्रम रहा जिस दौरान इस नर्सरी दे 6 साल दी मासूम किस तरह ट्यूशन तो कौन उसनूं लैके आया किस तरह वो चंडीगढ़ दे हल्लो माजरा दे जंगल तक पहुंची पूरी वारदात दी फिलहाल एक एंगल तो जांच की जा रही है और बहुत ही छेती इसदा सारी सच्चाई भी सामने रख दी जाएगी पुलिस वालों फिलहाल तुहानू दस दी कि चंडीगढ़ दे विच हैवानियत नूं अंजाम दिता गया एक 6 साल दी मासूम दे नाल दुष्कर्म होया और उस तो बाद उसनूं मौत दे घाट उतार दिता गया फिलहाल पुलिस हर एंगल तो इस मामले की जांच कर रही है अगली वड्डी खबर फतेहाबाद तो आ रही है फतेहाबाद दे विच कोरोना रिपोर्ट दा फर्जीवाड़ा सामने आया है पैसे लेके एक नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट बनाई जा रही सी और रतिया दे विच एक फोटो स्टेट दी दुकान दे विच इह फर्जीवाड़ा हो रहा सी सेहत विभाग दी टीम ने 2 लोकां नूं इस दे विच काबू किया है तां कोरोना वायरस हालांकि अजे भी पूरी तरह नहीं गया है कोरोना वायरस हजे भी उसका दूजा स्ट्रेन मौजूद है जिसनूं लैके लगातार केसां दे विच वाधा भी हो रहा है और लोगों की सेहत नूं लैके भी खिलवाड़ जरूर होया है जिथे ना किते कोरोना टेस्ट नूं लैके पहला फर्जीवाड़े सामने आउंदे सी तां हुण एक फोटो स्टेट दी एक दुकान है जिस दे विच फर्जीवाड़ा किया जा रहा सी पैसे लैके नेगेटिव रिपोर्ट बनाई जा रही सी और रतिया दे विच एक फोटो स्टेट दी दुकान है जिस दे विच ये भांडाफोड़ किया गया है कि ये नेगेटिव रिपोर्ट दिंदे हुंदे सी लोकां नूं तां किसी ना किते तरीके नाल अपने आप दे विच बहुत हैरान करन वाला ये मामला है क्योंकि अगर लोकां नूं नेगेटिव रिपोर्ट थमाई जांदी ते इस दे नाल किन्ने क लोक उस शख्स दे कंटैक्ट दे विच आउणगे जो असल दे विच पॉजिटिव होवेगा पर उस रिपोर्ट उसनूं नेगेटिव दित्ती गई है ते इस दे नाल सेहत नूं
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। आर्मी की भर्ती है 4 को 6 तारीख को थी, तो काफ़ी 2-3 दिन से लोग आ रहे थे एक आर्मी के प्रतिभागी हैं, तो हमारे कोरोना टेस्ट RT-PCR करवाने के लिए तो हम कर भी रहे थे, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। रिपोर्ट जैसे यहाँ से सैंपल होता है, फतेहाबाद जाता है, फतेहाबाद से करवा फिर रिपोर्ट आती है, तो मोस्टली 1 डे लग जाता है इसमें। तो कुछ लड़कों ने क्या करा कि इसमें थोड़ी सी शरारती तत्व थे, जो उन्होंने क्या करा कि फॉर्मेट वो कहीं से अपलोड करके कंप्यूटर वाले से उसी फॉर्मेट में अपनी विदाउट सैंपल दिए, फेक ID, फेक ISRF ID डाल के नेगेटिव रिपोर्ट की, और वो डॉक्टर जो ऑन ड्यूटी थे उनसे साइन करवा लिए गए, क्योंकि बहुत संगीन मामला है। इसमें ये तो मतलब अगर एक पॉजिटिव पेशेंट अगर नेगेटिव रिपोर्ट ले जाता है और क्राउड में चला जाता है, तो इससे बहुत हाई वो प्रोबेबिलिटी हो जाती है इसकी सेपरेट की। हमने कंप्लेन कर दी है पुलिस को। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਸਪਾਲ, ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਆਖਿਰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋर्ट ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ? देखिए, ये फतेहाबाद के रतिया का ये पूरा मामला है, जहां एक फोटो स्टेट की दुकान पर जो है ये जो कोरोना की जो फर्जी रिपोर्ट तैयार कर जो है युवकों को दी जाती थी। जो भी जैसे अब ये जो मामला सामने आया है, वो एक सेना में भर्ती होने के लिए कुछ युवक जो है उनको कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट चाहिए थी, तो उन्होंने उस फोटो स्टेट की दुकान पर जाकर एक फर्जी तरीके से एक रिपोर्ट तैयार की, और खुलासा तब हुआ जब उन्होंने जो रिपोर्ट बनाने के बाद जब डॉक्टर की मोहर लगती है और उसका साइन होता है, तब जाकर ये खुलासा हुआ कि इस तरह की ये जो फर्जी रिपोर्ट है वो इस फोटो स्टेट की दुकान पर हो रही है। तो स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम ने मिलकर जो है इस फोटो स्टेट की दुकान पर छापेमारी की, और उस दौरान जो 2 युवक जो है वो सेना में भर्ती होने के लिए फर्जी रिपोर्ट जो है कोरोना की बना रहे थे, तो उनको दबोच लिया है और आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी है। पुलिस भी जो फोटो स्टेट की दुकान का जो मालिक है उसको हिरासत में लिया जी। ठीक है जसपाल, तो कितने समय से इस तरह ये नेगेटिव रिपोर्ट बना रहे थे, कितने समय से ये फर्जीवाड़ा चल रहा था, और फिलहाल क्या दुकान को सील कर दिया गया है? देखिए, ये जांच के बाद ही पता लग पाएगा कि ये कब से बना रहे थे, लेकिन कुछ करीब 1 महीने से जो है स्वास्थ्य विभाग को और पुलिस को कई तरह के इस तरह के फोन आए थे कि इस तरह यहाँ जो फर्जी रिपोर्ट बनाकर जो है और युवक जो है अन्य जो जहाँ पर जो इस्तेमाल की जा रही है इस तरह की रिपोर्टें, तो स्वास्थ्य विभाग ने अब जो पुलिस के साथ मिलकर अब इसमें छापेमारी की है, और अब जो पुलिस है वो जांच करी है कि कब से ये इस तरह की जो रिपोर्टें तैयार करके और आगे जो है युवकों को अन्य लोगों को भेज रहा है। ठीक है जसपाल, फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी वास्ते। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈ ਕਿ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਰਤੀਆ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ, ਔਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।